नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। डायबिटीज़ भारत देश में एक कॉमन बीमारी बन चुकी है। करोड़ों लोग इसी चपेट में आ चुके हैं। लेकिन डायबिटीज़ होती क्यों है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और घर में रहकर क्या इसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर चर्चा करने के लिए आज हम पहुंचे हैं पालम में स्थित दिव्य प्रस्थ हॉस्पिटल में। और हमारे साथ हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर ज्ञान वत्स मौजूद हैं। डॉक्टर ज्ञान वत्स के बारे में आपको बता दें कि विभिन्न टॉपिक्स पर ये अपनी निष्पक्ष राय रखते हैं और आज हम सर से बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डॉक्टर साहब, ये बहुत ही गंभीर समस्या हो चुकी है और जिसको ये हो जाती है उसकी ज़िंदगी की मिठास ही ख़त्म हो जाती है। तो क्या होती है सर डायबिटीज़, सबसे पहले तो आप ये बताइए। Good morning, everybody. India has become a capital of diabetes. I think more than 75 million Indians are diabetic at the moment, and unfortunately, the second big part is this: the burden of pre-diabetic is also increasing, and unfortunately, so many of them are still undiagnosed. So, unfortunately, definitely, it's become a big medical burden on everyone, and responsibility is collective. And yes, we don't have to be afraid of this, but we have to educate ourselves, and we have to accept once we have this that there is something called lifestyle modification, diet modification, and definitely some consultancy that patient has to take from their physicians and go as per their guidelines. डॉक्टर साहब, क्या इसका मेन कोज क्या है? क्या ये जेनरिक होती है या फिर ये लाइफस्टाइल की पूरी गलती होती है कि लाइफस्टाइल की वजह से ये हो रही है? So India में the biggest cause is that environmental factor and lifestyle modification, and the migration of a population from rural area to urban area, and that and overeating outsides and changing of habits, lifestyle habits. This is the biggest cause, along with the environmental factors. अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो मोस्टली लोगों को यही लगता है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। क्या इसका ट्रीटमेंट सर संभव है, और संभव है तो इसका ड्यूरेशन क्या रहता है? देखो, बेसिकली ट्रीटमेंट तो इंडिया में आर सो मैनी एंड सो कन्फ्यूजिंग because we is the only country in the world we have so many pathies, from naturopathy to allopathy to Ayurvedic and homeopathic. As we as the doctors of allopathic, I would say that that's definitely we have very exceptionally good treatment at the moment, and not only medication, we are emphasizing on the lifestyle modification. आपको सुबह से लेकर रात तक क्या खाना है, कब खाना है, कितने बजे खाना है, एंड आपको डेफिनेटली थोड़ी एक्सरसाइज किस फॉर्म में कर सकते हो आपकी एज के हिसाब से, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से। आपको डेफिनेटली यू हैव टू इन बिल्ड सर्टेन थिंग्स इन योर लाइफ। मतलब आपको बेसिकली डाइटरी एंड एक्सरसाइज का डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, along with buckets of medications that are available in the market. डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग हैं इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में, उनको पता ही नहीं चलता है कि शरीर के अंदर चल क्या रहा है। कैसे उनको पता लगेगा क्या कुछ सिम्टम्स हैं कि जब उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि उनको डायबिटीज़ हो? देखो, डोंट वेट फॉर सिम्टम्स। आजकल इतना सर्टन इलनेस आर साइलेंट, लाइक आपका क्रॉनिक इलनेस लाइक डायबिटीज़ एज वेल एज हाइपरटेंशंस। तो एज पर सो मनी मीडिया अवेयरनेस आ रहा है। At least we're not living in ancient India. We're living in a very modern India. Now you go to any private or any government setup, go for screenings. आजकल screenings कराओ, and I think definitely as per guidelines, once you reach 35 or 40, or maybe if you have the history in your home, go and get your screened also. Don't wait for symptoms. Before you wait for symptoms, it might be you are too late. डॉक्टर साहब, एक और सवाल बहुत अहम है। लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझते हैं, तो आप ये हमारे दर्शकों को बताएं कि कितना गंभीर ये हमारी ज़िंदगी के लिए हो सकता है, कितना जो है प्रभाव डाल सकता है ये ज़िंदगी पर। इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊंगा कि 80% of all the hospitals patients are diabetic related at the moment in all the big centers. Delhi at least I can tell you for the fact. And it's definitely a very chronic debilitating disorder. It does not spare is any single organ in your body. So don't think कि केवल शुगर बढ़ा है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मुझे तो कुछ परेशानी नहीं है, मैं खा रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, मैं फ़िलहाल होंगे, पर 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद it might cut short your life. So it's important that you get yourself educated
and aware about this illness, and don't wait when symptoms become too prominent. तो इसलिए स्क्रीनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एंड किल द डिजीज़ इन द अर्ली स्टेजेस. आजकल तो हमारा कॉन्सेप्ट आ गया है टू रिवर्स द डायबिटीज़. वी कैन रिवर्स द डायबिटीज़. वी हैव अंडरस्टूड द फिजियोलॉजी ऑफ दिस carbohydrate metabolism so well, and it's so easy to understand, but definitely you need to educate and get aware of these things. कुछ लोगों में ये भी भ्रम रहता है कि डॉक्टर्स के पास जाएंगे, स्क्रीनिंग कराएंगे, इलाज कराएंगे, इलाज बहुत महंगा लगेगा, जेब खाली हो जाएगी, अकाउंट्स खाली हो जाएंगे. ये भ्रम लोगों को कैसे आप तोड़ें? देखो, ऐसा है कि अगर आप स्टार्टिंग में आज इलाज कराओगे तो बहुत सस्ता पड़ेगा. मे बी डॉक्टर की इतनी ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं आपको. अगर आपको थोड़ा गाइडेंस मिल जाएगी, आप अपना खाना पीन चेंज कर दोगे, लाइफस्टाइल चेंज कर देंगे, यू डोंट नीड टू कम. आपको सिंपल अपना HbA1c टारगेट के नीचे रखना है, दैट्स इट. एंड अगर आप स्टार्टिंग में अवॉइड करोगे डॉक्टर्स को और काउंसलिंग नहीं लोगे, एंड देन यू एंड अप विद कॉम्प्लिकेशन, you might end up in chronic kidney disease, you might end in chronic heart disease, blindness, so many things are there. It's endless, strokes हुआ. So it's better that is to learn and educate about diabetes when it's in the early stages or in the pre-early stages. बिल्कुल, ये एक ऐसी बीमारी है जो न सिर्फ आपके शरीर को बर्बाद करेगी बल्कि आपके परिवार को भी बर्बाद कर देगी. और जैसे डॉक्टर साहब बार बार कह रहे हैं कि स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है, इसको गंभीरता से लेना बहुत ज़रूरी है. सर, बहुत सारे लोग जो है केमिस्ट से दवाई ले लेके खाते रहते हैं, डॉक्टर पास नहीं जाते हैं, इंसुलिन लेते रहते हैं, तो इनसे क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट उनको हो सकता है, ये भी एक बार बता दें. देखो, ये बीमारी इज़ नॉट ए शॉर्ट लिव बीमारी की आप 5 दिन दवाई खाई और आप ठीक हो जाओगे. जब तक अजान है, जब तक आप खाना खाओगे, जब तक ये आपके मेटाबॉलिज्म एरर प्रॉब्लम आ सकती है. तो इट्स एडवाइजेबल यू कंसल्ट योर डॉक्टर. अगर आप पे पैसे नहीं हैं तो गो टू सीक योर एडवाइस फ्रॉम ए गवर्नमेंट डॉक्टर्स वे वेरी गुड, एक्सेप्शनली गुड आई वुड से. बट अवॉइड avoid any shortcuts. Pharmacists are there to dispense the medication which has been advised and prescribed by your registered practitioners. They don't have a right to dispense on their own, and ये आपके लिए घातक भी हो सकता है. Every medicines have some side effects. As we say, do no harm. So I would suggest to all my patients as well as families nearby and dear patients that consult your doctor whom you can trust. डॉक्टर ज्ञान, दिव्य प्रस्थ हॉस्पिटल एक ऐसा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहां हर बीमारी का इलाज होता है किफ़ायती फ़ीस में. अगर डायबिटीज़ की बात करें तो यहाँ क्या कुछ स्पेशलिटीज़ हैं डायबिटीज़ की बीमारियों के लिए? From diabetic educator to a physicians who have a very enriched experience in managing your diabetes, counseling, as well as we have super specialists who can take care of eventually uneventful complications, like we have a nephrologist, we have a neurologist, cardiologist. So under one roof, we are there to take care of your diabetes, and we're very willing and happy to answer your queries, and we are ready to solve your problem forever. सर, HbA1c क्या कुछ इसका महत्व है और कितना इम्पोर्टेंट? As per nowadays, American Diabetes Association, even in Indian Association of Diabetes, they have adopted HbA1c as one of the diagnostic tool and criteria, even for your prognosis. And it's also very important to assess whether your treatment is going in the right side or not. So eventually, like anything about 6.5, we can label them as diabetes. And if you are between 5.7 to 6.5, it's a pre-diabetic. And you're below 5.7, we say definitely you are non-diabetic. But definitely it's a catch. You have to use a gold standard method. Chromatography method is the ideal one, so you should go for that one. बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम. Thank you very much. तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर ज्ञान वत्स, जिन्होंने हमसे बात की डायबिटीज़ के बारे में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी बताई हैं जो आपके निश्चित तौर पर काम आएंगी आपकी ज़िंदगी के लिए. आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए स्पेशलिस्ट के साथ एक नए विषय पर. कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़.